Hey guys, hi. We're gonna start in like some time, so you'll have to wait a little bit. Our guest will be here shortly. Hi everyone. Hi, hello. Our guest will be joining us in just some time, so we'll have to wait. So keep commenting and talking and show all the questions and love. We'll keep responding to you and just stay tuned throughout the interview. You'll have lots and lots of fun. Guest will be joining us in just some time. You'll have to wait. Hello. Hello, am I audible? Yeah, yeah. Yeah, give me a minute. I think there's a Hello. 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 Hi. 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 Hello, everyone. Hello, ma'am. Hi, guys. Welcome to our talk show presented by Rollball Videos and sponsored by 18X Sports, Drug Me Sports, and Healthcare India. Hello, ma'am. Welcome to our show. I hope you're having a lovely evening. Guys, please welcome ma'am Devyani. Ma'am, please welcome her. And we're going to start with the interview. First of all, ma'am, we are really glad to have you here. Thank you so much. Thank you so much. So, ma'am, we're going to start with the question answers and everything in just a few minutes. Okay. Okay. Give me a minute. There's a. Hello? Hello? Yes, yes. Yeah, okay. So, ma'am, we're going to start with all our questions. So, first of all, we're going to talk about all your achievements in just a minute. So, Miss Devyani is an international role ball player, a former captain of Indian women team. She comes from Pune, Maharashtra, of course, and she has been the part of the 3 World Championships held in Kenya, 2013, India 2015, Bangladesh 2017, and one Asian Championship held at Bangkok in 2016. So, ma'am, out of all these things, all the championships you've been to, which one is your favorite? All had means all are favorite because each championship gave me much experience and a lot things. Okay. So I have a memory with each championship. I have some lesson so with each championship, some other experience with each championship. So तो चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. yeah. तो मैम आपने ये जो आपने गेम है आपका रोल बॉल काफी लोगों को नहीं पता होता. इट्स क्वाइट न्यू. It's spreading in a very huge form now.
लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे? आपने कैसे शुरू किया? क्या आपको लगा कि आपको यही गेम खेलना चाहिए या कैसे था आपका? Is it because of Raju sir? Actually, Is it like that? yeah. Actually, जब ये start हुआ, like we used to do speed skating and athletics in evening, like 5 to 6, 6 to 7. तो जब भी हम स्पीड स्केटिंग कर रहे थे, राजू सर के दिमाग में ये सब आइडिया आ गया था ये कि ऐसे ऐसे उनको कुछ गेम से रिलेटेड कुछ नया उनका आइडियाज जो थी, थॉट प्रोसेस था, वो चल रहा था. एंड देन एक दिन ऐसा हुआ कि रैंडमली उनके दिमाग में आ गया और उन्होंने हमें बास्केटबॉल दे दी ड्रिबलिंग करने के लिए और पासिंग करने के लिए विद स्केट्स. सो वी वर इन आई थिंक 4th or 5th व्हेन वी स्टार्टेड. सो उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था कि रोज वही स्पीड स्केटिंग करो, रोज वही एथलीट प्रैक्टिस करो. सो वी यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड फॉर दोज थिंग्स. एंड हमें किसी को भी आइडिया नहीं था एक्चुअली. जो भी उस टाइम पे प्लेयर्स थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स उस टाइम पे भी थे, स्पीड स्केटिंग के थे और हॉकी के थे जो इस गेम में कन्वर्ट हुए. सो बहुत ही एक्साइटमेंट रहती थी हमें कि कुछ अलग हमें करना है और कुछ अलग हम कर रहे हैं, बट किसी को भी कुछ आइडिया नहीं थी जब तक हमें पूरा मैच नहीं खिलवाया गया था. फर्स्ट डेमो वाज इन 2003 आई थिंक. हाँ, तब तक हमें कोई आइडिया नहीं थी कि हम ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं. वो देखने के बाद वो डेमोन्स्ट्रेशन उस टाइम पे हमें पता चला कि हम ऐसा कोई गेम खेलने वाले और जिसका भी डेमो बाकी स्टेट्स के प्लेयर्स को होने वाला है. तो इट वाज लाइक सरप्राइज्ड फीलिंग फॉर एवरीवन. काफी कम टाइम में ये गेम इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया है तो बहुत खुशी फील होती है फर्स्ट ऑफ ऑल. और मैम आपने इतनी छोटी एज में शुरू किया था तो क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम पे? 5th 6th स्टैंडर्ड में मैंने स्टार्ट किया. वैसे हाँ, 5th में ये तो लाइक 5th में हम लोग को पता था, आइडिया थी कि ये सब ऐसा गेम है. और मेरे बाकी जो उस टाइम पे टीममेट्स थे या फिर उस टाइम पे जो साथ फ्रेंड्स थे, उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन मैच भी खेली हुई थी. उसके बाद मैंने एक्चुअली ये गेम और वो सब ज्वाइन किया क्योंकि आई यूज्ड टू गो इन स्कूल. आई वाज इन डिफरेंट स्कूल and the friends who were practicing, they were in same school, in Balshikshan Mandir school. So okay. For them it was easy and for me it was difficult to go every day. So मैंने 5th 6th में स्टार्ट किया होगा ये. तो और उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर ये सब बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था उस टाइम पे जो था, फर्स्ट टाइम जो था, लेकिन हो गया, अभी है, स्टेबल है गेम अभी. 5th 6th तो बहुत छोटी एज हो जाती है. उस टाइम पे तो पता भी नहीं होता स्कूल ही जाना है और क्या करना है. तो आपने अपना मैनेज कैसे किया, स्टडीज और सब कुछ एक साथ? हो गया वो अपने आप. जैसे बिकॉज लाइक स्केटिंग, रोल बॉल यूज्ड टू बी वेरी फन दैट टाइम. इट वाज लाइक कि we used to get happiness by playing roll ball and going on ground every day. That used to be very happy feeling for us. So for me it was really very fun and I used to love to do that. So कि हाँ, ये करना है और ये रहता है ना कि अगर आप ये करोगे तो ही आपको ये चीज मिलेगी. तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ग्राउंड जाने मिलेगा. That used to be there. So वो हो गया मैनेज. तो अभी लाइक 40+ कंट्रीज में इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया हमारा रोल बॉल और इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन स्पोर्ट. तो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी ये सब होगा. क्या आपको लगा था कि ऐसे ही होगा या आपके कोई और प्लान थे या जरूरत से ज्यादा है जल्दी या क्या है, आपको कैसा लगता है? एक्चुअली ये सब कुछ जो है वो सबकी मेहनत है. लाइक कोचेस हो गए, लाइक जो कमिटी मेंबर्स है और जो प्लेयर्स है, जो पेरेंट्स है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. क्योंकि हर एक इंसान अपनी अपनी लेवल पे एक रोल गेम मतलब रोल अपना अपना प्ले करता है.
जैसे प्लेयर्स हो गए वो अपनी जगह पे अपना वो करेंगे, काम करेंगे, कोचेस अपनी जगह पे अपना काम करेंगे, एंड लाइक रोल बॉल इज लाइक अ फैमिली। बाकी गेम्स का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है कि उनका इंटरनल कैसे होता है एक्चुअली, लेकिन रोल बॉल में ऐसा नहीं है। रोल बॉल में हर एक जो भी है, जो भी सर्स है, जो भी मैम्स है, सब एक फैमिली की तरह है। इवन प्लेयर्स वी आर लाइक अ फैमिली, वी आर लाइक अ फ्रेंड्स, वी आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो all this is because of everyone who are part and parcel of football. तो मैम ड्यूरिंग लाइक केन्या एंड बांग्लादेश का जो हमारा चैंपियनशिप हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको क्या चेंजेस दिखे हैं अभी तक, या ड्यूरिंग दैट टाइम कि वुमेन का स्कोप कैसा है? आर वुमेन मोर कमिंग इनटू द प्ले, या वही सेम है, या क्या है? 2013 जब हम केन्या गए थे, एक्चुअली 4 countries of women were participating that time, because it was for first time. Women's World Cup was for first time, so only 4 countries were participated, and then कि उस टाइम पे भी ना वो ऐसे ऐसे थे, इंडिया वाज बेस्ट बिकॉज लाइक वी वर प्लेइंग फॉर सो मेनी इयर्स, सो इट वाज बेस्ट, एंड बाकी कंट्रीज ऐसी अप डाउन्स थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा बाकी इसको और गेम को, जब 2017 वर्ल्ड कप हम लोग गए थे, आई थिंक 42 वुमेन्स टीम्स वर प्लेइंग उस टाइम पे, और हर एक का गेम बहुत ही डेवलप था, और नहीं भी होगा। फर्स्ट डे उनका जो गेम था, फर्स्ट डे XYZ अगर कंट्री लेते हो, उस टाइम पे फर्स्ट डे उनका परफॉर्मेंस अगर 1 है, तो वो जो लास्ट डे तक उनका उसी टाइम उस 5 डेज में उनका परफॉर्मेंस लाइक 3-5 हो गया था। तो इतना वो लोग इस गेम को प्यार करते गए, और इतना उन्होंने इस चीज को अपने अंदर डेवलप किया, एंड एक्चुअली ये सब देख के और ये सब करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नेशनल चैंपियनशिप्स ऑल्सो, बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि फर्स्ट रोल बॉल डेमो, फर्स्ट रोल बॉल नेशनल, एंड अभी लेटेस्ट रोल बॉल नेशनल, आई हैव बीन लाइक कि बहुत ज्यादा गेम डेवलप हुआ, एंड इट विल बी डेवलपिंग। वो तो है, जिस रेंज से हमारा गेम डेवलप हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है, और आगे होगा। तो मैम आप जब कोच करती हैं, तो आप कोर्स ऑलराउंडर हैं, तो कोच भी करती है, तो आप जब कोच करती हैं तो कितना हार्ड होता है या स्ट्रगल्स होते हैं? कुछ आप एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर कीजिए। हार्ड इट्स लाइक कि बेसिकली ना हार्ड नहीं होता है। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो इट्स नॉट कि, लेकिन आपको बच्चों का वो पता होना चाहिए कि ये इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड है, और बाय मतलब ये गेम इतनी अट्रैक्टिव है कि आपको किसी पे ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि इस बच्चे को समझाओ कि आप रोल बॉल खेलो। इट्स लाइक कि वो जेन्युइनली आके बोलते हैं कि नहीं मैम, हमें रोल बॉल खेलना है। सो मेरे पास ऐसे छोटे बच्चे हैं जो जूनियर केजी, सीनियर केजीज में है। सो मैं जब बड़ों की प्रैक्टिस लेती हूँ, जब सीनियर प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो देखते हैं उनको, और नेक्स्ट डे दे लाइक कि हमने अभी 15 राउंड्स 20 राउंड्स कंप्लीट किए हैं, तो अभी हम बॉल देने वाले हो हमें ड्रिबलिंग के लिए, और वो फिर स्केट्स उतार के वो ग्राउंड पे ही रुक के उसी गोल पोस्ट में जाके अपने गोल्स भी करते हैं। मतलब इतना ज्यादा गुड बीइंग अ कोच, आई रियली लव इट। कितना क्यूट लगता होगा, छोटे छोटे बच्चे इतने से खेलने आते होंगे। बहुत तो ज्यादा, मतलब उनको, और लाइक पूना में तो रोल बॉल की क्रेज है ही है अभी। तो मैम अभी जो हमारा और आप क्या लगता है आपको प्लान्स क्या होंगे रोल बॉल के आगे बढ़ने के? जैसे प्लेयर्स आप देख रहे हैं हम लोग कि चैंपियनशिप है, तो उसमें बहुत प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, उत्सुकता बढ़ रही है, लोग और खेलना चाहते हैं। तो डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ मोर चैंपियनशिप एंड अ मोर लॉट ऑफ कम्युनिटी टू कम अप? रोल बॉल चैंपियनशिप्स का कैसे है ना कि
यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब आप सबको रिकॉर्ड्स भी देना होता है और गवर्नमेंट्स को रिकॉर्ड्स चाहिए होता, और इतने पूरे ईयर में इतने ज्यादा चैंपियनशिप्स के लिए अंडर 11 होता है, अंडर 14, देन अंडर 17, सीनियर्स 4, तो यही नेशनल्स होती है, ठीक है, फेडरेशन वाली। देन स्कूल नेशनल्स अलग होती है जिसमें 14, 17, 19 एज ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो ये 3 नेशनल्स ऑलमोस्ट हमारी 7-8 नेशनल्स तो ईयर में हो ही जाती है। सो और आगे करना है या इसी में कुछ और डेवलप करना है, ये फेडरेशन अभी उसको लेके प्लान कर रही है कि जैसे नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, सो वी आर प्लानिंग विद दैट। देन रोल बॉल डेवलपमेंट की अब हम वो ट्राई कर रहे हैं कि कैमराज उसमें फिक्स किया जाए, सो वी कैन गिव रिव्यू सिस्टम। Hello. Hello. Yes. टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, ऑनलाइन है सब कुछ आजकल तो मैम अपेरेंटली इतने सारे चैंपियनशिप खेलने के बाद इतना आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप गए हो, सबसे टफ आपके लिए अभी तक कौन सी थी कि आपको लगा है कि मतलब हाँ ये तो बहुत टफ है? ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टार्टिंग में खेल रहे थे तब हरियाणा की टीम अच्छी थी गर्ल्स की, उस टाइम पे अच्छी लड़कियां खेल रही थी बहुत स्टार्टिंग में। आई थिंक इन when we were in Kerala for our national, that was my first national championship उस टाइम पे, एंड सेकंड जो यहाँ पे पूना में हुआ था, सो उस टाइम पे हरियाणा की टीम अच्छी रहती थी। उसके बाद जैसे जैसे डेवलप हुआ, फिर राजस्थान की टीम अच्छी है, यूपी की टीम अच्छी है, और जो अभी सीनियर नेशनल हुए उसमें जम्मू कश्मीर की वो गर्ल्स टीम अच्छी थी। सो वो डिपेंड्स हर चैंपियनशिप के लिए और हर इसके लिए। मैंने आपको यही बोला ना कि हर नेशनल में गेम का 1+ परफॉर्मेंस रहता है एज अ गेम, कि एक टीम एक लेवल पे परफॉर्म कर रही है इस नेशनल को, तो नेक्स्ट नेशनल को उसका परफॉर्मेंस +1 होता ही होता है, एंड दैट्स द अमेजिंग थिंग ऑफ रोल बॉल। दैट्स रियली लवली कि कैसे सब कर रहे हैं और इतना डिफिकल्ट होने के बाद भी इतने अचीवमेंट्स हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक और स्पॉन्सर्स के बारे में बताऊंगी, दैट इज ड्रगमी स्पोर्ट्स। इफ यू वांट टू गेट प्रमोटेड और यू वांट टू टॉक टू ऑल अदर people who are related to roll ball community, please go ahead and check them out. You will have a great support and a lot of promotion on Drugme Sports. You can check out their link, which we will be putting down, and their all the other things that you can do. So please check them out. It's going to be really fun. So ma'am, after all these questions, all the serious questions, we're going to have a small rapid fire round. तो आपको जल्दी जल्दी से सारे आंसर्स देने होंगे। So best coach you trained under? Best coach you trained under? आपका फेवरेट कोच जिसके अंडर आपने बहुत ज्यादा you loved doing it all? Raju sir. Raju sir, okay, of course, why not? Your favorite dish? Favorite dish? Yeah, it's out of context. I swear, पूरे लॉकडाउन और ये पूरे पैंडेमिक की वजह से I was not able to eat. I swear, same. One shot you regret missing? Roll ball nowadays. Okay, so roll ball moments you want to relive again. Any moment? बहुत सारे हैं वैसे तो। कोई एक होगा बहुत फेवरेट? बिल्कुल
ऐसे स्पेसिफिक बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं. So, last question, ma'am. If not rollerball, which other sport would you have chosen? I think skating. Skating, of course. Yeah. Some related, a combination of sports. Yeah. So, guys, I'm going to tell you about one of our sponsors again, that is 18 Exports. I'm wearing their t-shirt as always, and they have a wide variety of accessories. You should check them out. There's skates, caps, masks, and of course shirts and other accessories. You should please check them out on their website and also on their Instagram handle. So please do check them out. We'll be linking them down below. So, ma'am, back to the questions we're gonna have again. बट आप लोग प्यार भेजते रहिए, क्वेश्चंस हो वो भी भेजिए, ऐसे शांति से बैठने की जरूरत नहीं है. और शेयर अस आउट. तो मैम, जो हमारा है, रोल बॉल इज ग्रोइंग इन एवरी स्पोर्ट, बट विच स्टेट इज प्रोड्यूसिंग मोस्ट, लाइक आपको लग रहा है सबसे अच्छे रोल बॉल प्लेयर्स आ रहे हैं इस टाइम, सर? महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू कश्मीर. हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो स्पोर्ट्स की वजह से स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता होगा आपका, तो फ्रस्ट्रेशन होती होगी. सो हाउ डू यू कोप दैट अप? कोचिंग एंड लाइक प्लेइंग रोल बॉल. जब भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन होती है, सो आई लाइक टू वेयर स्केट्स एंड बस गो ऑन मूविंग ऑन दैट. So, ma'am, right now, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी girls are watching you right now. You're a great inspiration, especially for all of us. So, ma'am, do you have any message for do you have any message for them ki even who don't play role ball still look up to you? So, do you have any message ki how to go around in the world and stuff like that? Actually, see, I would suggest, rather I would say everyone that कोई भी स्पोर्ट्स लो आप, कोई भी एक स्पोर्ट को कंटिन्यू रखो अपने साथ. करियर इज अनदर थिंग, लाइक आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपने करियर पे फोकस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट स्टिल कोई भी एक स्पोर्ट्स को पकड़ के अपने साथ उसको खेलो और उसको जियो. स्पोर्ट्स इज नॉट लाइक दैट कि आप बस जीते हो, आप कितने मैचेस जीते हो, आपने कितना हारे हो, वो काउंट नहीं होता है. इट्स लाइक कि यू गिव योर 100% इन दैट स्पोर्ट्स, बिकॉज उसमें जो आपको सीखने को मिलता है, उसमें जो चीजें आपको मिलती है, वो और किसी चीज में नहीं मिलती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल रोड बॉल अगर लेते हैं तो ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है. सो आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है. इन अ सेकंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन, वो चेंज अपने अंदर आता है. एंड फॉर अ वुमन nowadays you have to be very powerful in all ways. I would say in all ways, not only in but strength, but in all ways. Your mind and your everything should be very strong, and every sports give you these things. Every sports make you strong, and that is one of the important thing that every girl or every woman should have some sport in her life. She should be. अभी हमारे गेम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ एग्जाम्पल हूँ, बट 100% बहुत अच्छी प्लेयर्स हमारे गेम में हैं, और वो भी काफ़ी अपने करियर को साथ भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट गेम भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो एवरीवन शुड लुक एट दैट, क्योंकि गेम आपको जो देता है, स्पोर्ट्स आपको जो देता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता. जो भी मेरे ग्राउंड पे लड़कियां होती है, जो भी मेरे ग्राउंड की बच्चे हैं, मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि छोड़ना नहीं है सब चीज़ों को, क्योंकि ये जो मिलता है बाकी चीज़ों में नहीं मिलता. So I hope आप सब लिख रहे हैं. Everyone is writing all the tips and all the good things ma'am is telling you, क्योंकि ये बहुत helpful है. काफी strong message था कि छोड़ना नहीं है, consistent रहना है. तो मैम, आपके कुछ प्लान्स है रोल बॉल को आगे लेके, कि आगे और क्या करना है, या कुछ हो आपका? रोल बॉल का अभी तो मैं कोचिंग कर रही हूँ, आई होप कि मैं कंटिन्यू करूँगी. अभी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे आजकल बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड ऑल.
लेकिन हाँ, मैं कोचिंग कंटिन्यू करूंगी, इसको लेके जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहेंगे रोल बॉल को लेके उसमें कंटिन्यू रहूंगी। और काफी सारी प्रोग्राम्स है ऑलरेडी जो इसको रोल बॉल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें जरूर रहूंगी मैं। तो मैम कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चैंपियनशिप या किसी के लिए गए हो और अचानक से आपको बहुत गुस्सा आया हो और आपने कोई इंसिडेंट, किस्सा या झगड़ा कुछ हुआ हो, आप हमारे साथ शेयर करेंगे? बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत बार होता है एक्चुअली। एज अ प्लेयर मुझे बहुत कम गुस्सा आया था, लेकिन जब मैं कोच एज अ कोच गई हूँ, एज अ कोच मैंने अपनी टीम्स लेके गई हूँ, तब ऐसा बहुत बार हुआ है। एक नेशनल चैंपियनशिप थी जब हमारी सिंह स्कूल नेशनल थी, और उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि कुछ गोल काउंट्स में और उसमें उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, और मैंने उस टाइम पे जो भी ऑफिशियल थे उनके साथ मैंने बहुत लड़ाई भी की थी, उनको बहुत बोला भी था। लेकिन ऐसा रहता है ना फिर बाद में कि नहीं, यू आर अ प्लेयर ऑल्सो, सो यू हैव टू बी, शांत रहना पड़ता है फिर उसके बाद। मैम कभी बहुत इंजरी लगती है गेम्स में और आप प्ले करते हो इतना सारा, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत आपकी हार्ड इंजरी हो गई हो, कभी आपको याद हो सबसे बड़ी इंजरी कोई खेलते वक्त? खेलते वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा गणेश फेस्टिवल यहाँ पे बहुत ज्यादा वो होता है। सो पूना में, आप मुंबई में रहते हो तो आपको ज्यादा पता है। सो यहाँ पे गणेश विसर्जन था, उस टाइम पे हमें स्केट्स पे रैली थी हमारी स्केट्स के ऊपर। सो उस टाइम पे ना हम छोटे छोटे रोड्स थे और उसमें हम डेमो प्ले कर रहे थे रोल बॉल बॉल के साथ, ड्रिबलिंग एंड स्किल्स। तो एक वहां पे गड्ढा था, उसमें मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और मैं स्केट्स पहने हुए थे उस टाइम पे। तो वो था, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी वर्ल्ड कप ट्रायल्स थी और मेरा तब एंकल इंजर्ड हुआ था। वो थोड़ा मुझे टेंशन था कि अभी ट्रायल्स है तो मैं रिकवर हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी। हाँ, तो मैम कभी ऐसा हुआ बीच गेम में हो गया हो और आपको फिर बहुत स्ट्रेस हो रहा हो वो टाइम पे, कभी ऐसे ब्रेक डाउन हो या इंजरी हो, या कभी आपने अपने आप को संभाला हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके पास हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। थैंकफुल, वी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैम कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि बहुत हार्ड हुआ हो बचपन में गेम, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इतनी छोटे से शुरू कर दें और इतना पढ़ाई है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, तो सबको बहुत हार्ड हो जाए अचानक से, ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं अभी मुझे वापस मेरे से नहीं हो रहा है, बट देन यू केम बैक, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा तो हुआ ही नहीं है, बिकॉज ऑफ राजू सर। तो ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगेन ही इज स्पोर्ट्स टीचर। सो ऐसा था कि शाम को ग्राउंड जाना है तो जाना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कुछ भी नहीं। सो हो जाता था, मतलब वो कंटिन्यू हो गया। एंड उसके बाद सडनली रोल बॉल केम आउट, एंड उसके सब डॉक्यूमेंटेशंस, उसके सब कॉन्टैक्ट्स, उसका सब वो चीज रहता था, वो घर में ही रहते थे सब चीजें, हम लोगों ने घर से ही सब स्टार्ट किया है। तो वो सब मैंने देखा है और उसमें मेरी भी हेल्प रही है। सो इसके साथ जो अटैचमेंट है वो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप गेम खेल रहे हो, इसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट है। तो वो कंटिन्यू होता गया, क्योंकि पता है ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता है हम गेम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये तो है। तो मतलब राजू सर का सपोर्ट थ्रू आउट रहा है, विच इज वेरी ग्रेट ऑफ अ थिंग। तो मैम कभी ऐसे जैसे आपका जो ट्रेनिंग है, आपके कुछ टिप्स हो जो आप हम सबको बताना चाहते हो? स्पेशली पैंडेमिक की वजह से बहुत ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स आई हैं और वापस रीस्टार्ट करना है गेम को, तो आपके पास कोई ट्रेनिंग टिप्स हो या ऐसा कुछ आप हमें बताना चाहें?
पैंडेमिक की वजह से तो काफी ट्रेनिंग की और उसकी प्रॉब्लम हुई है, बट आई स्टिल मैंने काफी सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स में मेरे इसमें मैंने सबको बोला है कि ठीक है, आप स्केटिंग तो नहीं कर सकते हो लेकिन आप फिजिकली फिट रह सकते हो। आप वो तो कर सकते हो कि आप अपनी फिजिक मेंटेन रखिए, अपने स्टेमिना मेंटेन रखिए, आपका बाकी सब चीजें, और वो है हम घर पे भी कर सकते हैं वो। और अभी स्टार्ट करना है तो you can start, like everything is open now, so senior players can do practice। और सीनियर प्लेयर्स को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज सो स्किल्ड इन रोल बॉल की बेसिक से तो स्टार्ट। मेन थिंग इज कि जो स्टैमिना आपका लैग हुआ है अभी इतने दिनों में, बेसिकली मेन थिंग इज दैट योर स्टैमिना जो अभी इतने दिनों से हम नहीं कर पाए हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट ओनली, बेसिक थिंग यू हैव टू स्टार्ट। ओके, तो आई होप सब लोग नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो अपने दिमाग में बिल्कुल कर लिया है कि मुझे ये करना है। तो मैम, आपके पास हमारे कोई मैसेज है रोल बॉल वीडियोस के इंस्टाग्राम के पेज के लिए? आप लोग का जो काम है, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स यू आर टेकिंग, एंड आई होप आप नए नए चीज़ों के साथ आए, गेम को सपोर्ट करें, गेम को डेवलप करें, एंड ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन एवरी वे। लेकिन बस यही है कि नए कंसेप्ट्स लेके आओ जिसमें हमारी ज़रूरतें हम हेल्प करेंगे, एंड लाइक every player in roll ball is very supportive, very cooperative, so you can be like you can develop this game in any way। आपको सिर्फ फेडरेशन की जरूरत नहीं है, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो वैसे भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपका सपोर्ट है, अचीवमेंट है कि हम सब एक कम्युनिटी है, बहुत अच्छा वार्म फीलिंग आती है। So, guys, one more sponsor I'm going to tell you all about, that is L-Care India. I'm using their earphones. You can check out our code as well, that is Rollball, all of it in caps. And please check them out. They have amazing accessories for your phone in a very reasonable price. और since it is आपका इंडिया का प्रोडक्ट है, vocal for local, so please go and check it out. और आपको डिस्काउंट है 10% off from our promo code. We'll have all the details linked down below. So once more, I'm gonna tell all the sponsors' names. That is 18X Sports, L-Care India, and Rugby Sports. Thank you so much. अब हम थोड़ा wrap up कर लेंगे. We had a lovely conversation with you, ma'am. इतना amazing interview था, बहुत empowering. Thank you so much for joining us. And everyone, आपको और भी please stay tuned for more of the interviews and all the other things. Questions, suggestions, please हमें hit करते रहिएगा. Thank you so much, ma'am, and thank you so much everyone for being here. Thank you. Thank you.